Hello everyone, myself Majla. Today we will discuss about monarchy and democracy in Nepal, and then also we'll discuss about ethnic conflict and democracy in Sri Lanka, right? This is part 3 of contemporary South Asia from class 12 political science. Let's start. First, we will look at into the Nepal, right? Now, see if we analyze the Nepal, Nepal was a Hindu kingdom in the past, and then a constitutional monarchy in the modern period for many years. During this particular time period, when it was Hindu kingdom, and of course, when it was constitutional monarchy, common people of Nepal, they always wanted a more responsible form of government, but what the king used to do, they with the help of army retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal, right? But in 1990s the pro democratic movement started. Acha, okay, listen, before I explain this one, I will just show you the one slide in which you will see important kings who ruled in Nepal. That is not at all important for your exam, just to get the brief idea about the background. Here you can see some of the important kings of Nepal. Basically, see, Shah dynasty जो है that ruled the Nepal from 1768 to 2008. Okay, so Shah dynasty में जो main person जो है, you can see here Prithvi Narayan Shah. He actually, what he done? He unified the Nepal. Okay, so 1768 से पहले नेपाल जो था that was divided into different small states. Okay, so उसको unify किया and then he made the kingdom of Nepal and then he started ruling. So Shah dynasty जो था that started ruling and then you can see मैंने few कुछ important जो rulers जो थे from 1911 onwards I mentioned here. Tribhuvan, then Mahendra, उसके बाद Birendra, Dipendra, then Gyanendra, and you can see Gyanendra was considered as the last king of the हिंदू किंगडम इन द वर्ल्ड. अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करना, 2001 में जून में यहाँ पर एक एक रॉयल मैसेकर हुआ था दैट बीरेंद्र एंड फैमिली मेम्बर्स ऑफ बीरेंद्र वर असैसिनेटेड. बहुत सारे उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, वी विल नॉट गेट इनटू दैट. एंड आफ्टर दिस रॉयल मैसेकर इंसिडेंट दीपेंद्र इवेंट टू कोमा, और वो कोमा में रहते हुए उसको वो ऑफकोर्स एज पर दी प्रोसेस ही वॉज मेड एज द किंग, बट he ruled just for only 3-4 days. उसके बाद उसके ज्ञानेंद्र, that was brother of Birendra, he became ruler. Okay, so Gyanendra, he was considered as the last king of Hindu kingdom in the world. He's there right now. Okay, so this is about a brief background about some of the important rulers of the Shah dynasty who ruled. Achha, one more thing keep in mind that in 1991 1951 not 91 1951 एक रेवोल्यूशन हुआ था नेपाल में that was actually considered as the that was awakening of democracy in Nepal. Okay, so जो एक democracy establishment एक pro democratic movement जो था somewhere or the other 1951 में एक बार start हुआ था and then 1990s में हुआ था, then 2006. Now we will discuss about 1990s वाला and then 2006 वाला time period का. Okay, सी 1990s में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, राइट? और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किंग बीरेंद्र जो थे, ही वॉज द ऑफ कोर्स मोनार्क, राइट? तो उन्होंने क्या किया, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश किया. ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स व्हाट? हेड ऑफ द स्टेट विल बी मोनार्क एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर पार्लियामेंट भी होगा जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होंगे. ओके, सो वी कैन सी दैट कि एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लोगों के पास कुछ थोड़ा बहुत पावर आ रहा है, राइट? और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया था, प्रोमलगेट किया था. देन 1991 में ऑफकोर्स पार्लियामेंट के लिए मेंबर्स की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए इलेक्शन भी हुआ था. नेपाली कांग्रेस पार्टी गॉट दी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स. ओके, अच्छा लिसन, इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक और इंसिडेंट था, दैट वाज ड्यूरिंग दिस 1990s. माओस्ट ऑफ नेपाल एक दूसरा ग्रुप था विच एक्चुअली बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसर्जेंसी एंड दे वर अगेंस्ट, ऑफकोर्स वो भी मोनार्क के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते कि ऑटोक्रेटिक रूल सिस्टम हो, एंड दे एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी रीजन ऑफ द नेपाल. ओके, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हुआ था, कन्फ्लिक्ट भी हुआ था, एक तरीके से नेपाल में एक सिविल वॉर हुआ था अंडर दिस माओइस्ट ग्रुप 1996 से 2006 तक, दैट इज़ अप टू नियरली 10 years. इन 2006 दे साइंड दी पीस अकॉर्ड. उसके बाद यहाँ ये जो सिविल वॉर जो था ये ख़त्म हुआ था. ओके, और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक तरीके से ये था कि एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट था बिटवीन 3 different ग्रुप्स. वन साइड माओइस्ट, एक तरफ जो मोनार्क को सपोर्ट करते थे वो ग्रुप्स के थ्रू,
और एक तरफ डेमोक्रेट्स की तरफ, राइट. 2002 में किंग ज्ञानेंद्र जो थे ना, ही अबॉलिश द पार्लियामेंट. सी 1990s में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया था, तो ऑफकोर्स वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है दैट वाज मोनार्क, और जो पार्लियामेंट भी एस्टैब्लिश हुआ था, राइट, 2002 में उसको अबॉलिश कर दिया, डिसमिस कर दिया. एंड देन ही क्रिएटेड, ऑफकोर्स वी कैन सी नाउ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नाउ वी आर मूव्ड बैक टू एब्सोल्यूट मोनार्की. ओके, सारा पावर जो था अब ज्ञानेंद्र के हाथ में आ गया, राइट. नाउ सीइंग ऑल दिस थिंग्स, 2006 में अगेन एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंड इन दैट मूवमेंट वाज एक्चुअली लेड बाय लार्जली बाय 7 पार्टी अलायंस. एक 7 पार्टी, बेसिकली यहाँ पर 7 डिफरेंट पार्टीज का एक अलायंस था, एक कोलिजन ग्रुप था, विच वॉज एक्चुअली अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ मोनार्क. ओके, और माओइस्ट ने भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन सोशल एक्टिविस्ट एज वेल. काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स में पार्टिसिपेट किया था, एंड दे ऑल स्टार्टेड द नॉन वायलेंस मूवमेंट अगेंस्ट दिस ज्ञानेंद्र अबाउट इट डिसीजन. ओके, एंड फाइनली जो उसने पार्लियामेंट को डिसमिस किया था, दैट डिसीजन इज टेकन बैक, and in 2008 monarchy was abolished and new constituent assembly was formed to make the constitution for Nepal. So finally 2015 में नेपाल में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ, अकॉर्डिंग टू विच इन टुडेज टाइम द पॉलिटिकल सिस्टम इज गवर्नड. ओके, इन टुडेज टाइम नेपाल इज अ parliamentary form of government, and of course multi-party system follow होता है. Okay, and KP Sharma is the present Prime Minister of Nepal, right. I hope the Nepal is clear to all of you. Now we will discuss about Sri Lanka, ethnic conflict and democracy in Sri Lanka. Now see, in order to understand Sri Lanka, we have to little bit go to the background, that is during the British rule. Now see, during British period, a lot of Tamil people from India, they migrated to Sri Lanka, and slowly and gradually वहाँ पर उनका जो पोजीशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पोस्ट में एंड इन एजुकेशन लेवल पे काफ़ी ज़्यादा वो एक डोमिनेंट ग्रुप की तरह इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपाइंग गवर्नमेंट पोस्ट एंड एजुकेशनली वो काफ़ी डोमिनेंट हो गए थे. ओके, बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उनका जो था दैट वाज अंडर द माइनॉरिटी कैटेगरी, राइट. अगर हम प्रेजेंट में सेंसस अगर शेयर करो, दैट इज in as per I'm talking about latest census, श्रीलंका में जो सिन्हाला पीपल है दे आर नियरली अराउंड 75%. बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है उसमें कुछ तमिल पीपल है, कुछ और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, राइट. सो वी कैन सी दैट जो तमिल पीपल है वहाँ पर वो माइनॉरिटी ग्रुप में. ओके, सो उस टाइम पे भी वो माइनॉरिटी ग्रुप में थे, बट बीइंग इन माइनॉरिटी ग्रुप दे आर एक्चुअली दे वर डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी. सो दीज थिंग्स वर नॉट लाइक्ड बाय द सिन्हाला पीपल. ओके, सो हियर यू कैन सी द लोकेशन ऑफ दिस तमिल पीपल. ओके, सो ये वो एरियाज है जहाँ पर ये तमिल पीपल ज़्यादा डोमिनेंट थे. आई मीन इनका पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर रीजन में था. ओके, ना आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका को उस टाइम पे सिलोन कहते थे. 1948 में जैसे उसे इंडिपेंडेंस मिला था, इट एस्टैब्लिश अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है बेसिकली, ऑफ कोर्स जो ग्रुप मेजॉरिटी में होते हैं उसके गवर्नमेंट फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके सीट्स ज़्यादा होंगे तो दे विल मीट दैट रिक्वायर्ड नंबर, राइट. सिन्हाला पीपल जो थे दे वर इन मेजॉरिटी, तो ऑफकोर्स उनके गवर्नमेंट फॉर्म होते थे. जो तमिल पीपल थे वो माइनॉरिटी में थे, उनके इतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं इलेक्ट होते थे कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके. ओके, तो सिन्हाला गवर्नमेंट जो था जो पार्टी सिन्हाला कम्युनिटी के थे वो जब वो पावर में आते थे, दे यूज्ड टू मेक लॉज इन सच अ वे दैट दैट फेवर्ड सिन्हाला पीपल. फॉर एग्जांपल 1956 में दे मेड सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट. एंड दिस इज समथिंग वेरी बैड फॉर द तमिल पीपल. 1970s में तमिल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन पुट कर दिया. कॉलेज में अगर एडमिशन्स होते हैं उसमें ज़्यादा जो है वो वहाँ के सिन्हाला पीपल के लिए कुछ काइंड ऑफ कंसेशन वगैरह था, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिलैक्सेशंस थे. ओके, और इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हुए थे. फॉर एग्जांपल आई मेंशन फ्यू ईयर्स जहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हुए थे बिटवीन दी सिन्हाला गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स विद दी तमिल पीपल. ओके, सिंस यहाँ पर तमिल पीपल के साथ उनको निगलेक्ट किया गया था, तो तमिल ग्रुप में ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया. ओके, उनमें से जो एक फेमस ग्रुप, एक बहुत पावरफुल ग्रुप जो इमर्ज हुआ था, दैट वाज LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम. ओके, सो ये ग्रुप जो था ये स्ट्रांगली इन्वॉल्व था. फॉर एग्जाम्पल आई मेंशन हियर फ्रॉम 1983 टू 2009. ओके, सो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काफ़ी प्रोमिनेंट था. एंड
इनका मेन डिमांड यही था कि दैट दे वांटेड अ सेपरेट कंट्री जहाँ पर ये सारे पॉपुलेशन आई मीन जहाँ जिन रीजन में इनका पॉपुलेशन है दैट शुड बी मेड एज अ सेपरेट कंट्री. यू कैन सी इन द मैप दैट रेड पोर्शन विच वी हैव डिस्कस्ड. ओके, सो दैट शुड बी अ सेपरेट कंट्री. दैट वाज देयर डिमांड. ओके, इनके जो लीडर जो थे दैट वाज वेलुपले प्रभाकरन. इनमें इनके ग्रुप में ऐसे थे कि काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेन और डिसिप्लिन भी थे. ओके, और इनकी खुद की नेवी और एयरफोर्स भी होता था. ओके, ऑल्दो नॉट दैट मच लाइक जैसे एक कंट्री का होता है, बट येस बीइंग दिस मिलिटेंट ग्रुप दे एस्टैब्लिश दैट मच. सुसाइड बॉम्बिंग्स भी करवाते थे. ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि वाई इंडिया इन्वॉल्व इन दिस कन्फ्लिक्ट. यहाँ पर कन्फ्लिक्ट किसके बीच में? श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द LTTE. सो इट इज इन देयर, आई मीन दिस इज देयर इंटरनल कन्फ्लिक्ट. ओके, वाई इंडिया इन्वॉल्व इन दिस कन्फ्लिक्ट? of course it all because of the pressure of Tamil people in India. Okay, so in India mein jo Tamil people hai, they actually prescribe the government that they should take any kind of steps in order to solve the crisis of Tamil people problem in Sri Lanka. Okay, so especially from Tamil Nadu, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा pressure जो है वो central government के ऊपर आते थे that they have to take any decision in order to solve in this problem. Okay, so उससे ये था कि from 1983 to 87 somewhere or the other government जो था that was actually indirectly I'm saying, okay, indirectly helping the LTTE group ताकि वो फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दी इक्विपमेंट्स इन ऑल. ओके, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर देम. तो इस तरीके से इनडायरेक्टली जो था एक तरीके से गवर्नमेंट का यहाँ पर सपोर्ट था LTTE को बिटवीन 1983 to 87 आई एम टॉकिंग. एंड गवर्नमेंट ने फिर ये भी ट्राई किया कि फ्रॉम टाइम टू टाइम श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात भी किया ताकि जो इशू है तमिल का दैट शुड बी सॉल्व्ड इन अ पीसफुल मैनर. ओके, बट फाइनली 1987 में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला था कि दे शुड स्टॉप सपोर्टिंग दिस LTTE ग्रुप. एंड इंडिया जो था वो फाइनली डायरेक्टली अब इन्वॉल्व होता है विद दिस इशू. एंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में एक पीस अकॉर्ड साइन होता है इन 1987. उसमें साइन किसके बीच में होता है? दैट वाज एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया में? राजीव गांधी. एंड विद दी श्रीलंकन JR जयवर्धन के साथ उनका एग्रीमेंट साइन होता है. ओके, अच्छा, एग्रीमेंट जो पीस अकॉर्ड बेसिकली इसमें जो साइन हुआ उसमें ये डिसाइड हुआ, राजीव गांधी सेड दैट श्रीलंकन गवर्नमेंट को कुछ तमिलियंस को कंसेशन प्रोवाइड करना चाहिए. फॉर एग्जांपल उनके लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना. ओके, और जो नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंस वाला रीजन है आई मीन वेयर दिस तमिल पीपल एक्चुअली वहाँ उनका जो पॉपुलेशन रहता है, तो उन दोनों रीजन को एक तरीके से एक मर्ज करके एक प्रोविंस बना देना चाहिए ताकि वहाँ पर एक सिमिलर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करे. ओके, एंड देन इंडिया जो है इट विल प्रोवाइड द पीस कीपिंग फोर्स. ओके, सो बेसिकली इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वो सेंड करेगा ताकि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड देन LTTE के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो इसको सॉल्व करेगा. ओके, पीस को एस्टैब्लिश करेगा, राइट. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दिस एग्रीमेंट ऑपरेशन पवन के अंडर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो श्रीलंका में गया था. ओके, और इंडियन आर्मी जो था स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ पर ये हुआ कि वो तो गए थे पीस आई मीन कीपिंग फोर्स की तरह इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स विद द LTTE. यहाँ पर ये हुआ दैट दिस इंडियन सोल्जर जो गए थे वहाँ पर दे एक्चुअली इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट विद द LTTE. ओके, बिकॉज LTTE वॉज नॉट हैप्पी कि वो क्यों एग्रीमेंट कर रहे हैं विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वन मोर थिंग, इवन द श्रीलंकन पीपल, सिन्हाला पीपल इन श्रीलंका, दे वर नॉट हैप्पी कि उनके कंट्री में एक बाहर किसी और कंट्री का जो सोल्जर्स है वो आके यहाँ पर पीस इस्टेब्लिश कर रहे हैं. बिकॉज दे थॉट दैट दिस इज देयर इंटरनल मैटर, दे शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम. व्हाई दिस force from another country is there in their country? Okay, so they were not happy with this thing. And finally with the pressure of Sinhala people on the Sri Lankan government ने Indian government को बोला कि that they should call the peacekeeping force back. Okay, so 1989 में जो Indian peacekeeping force होता that went back to India, right. एंड 1991 में फिर इलेक्शन हुआ था. ओके, सी पहले जो पीस कीपिंग फोर्स सेंड किया था इंडिया से दैट वाज अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी. ओके, सो 1991 में इलेक्शन था. एट दैट टाइम राजीव गांधी जो है पॉसिबिलिटी ये था कि दैट ही विल बी री इलेक्टेड, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी था. एंड सिंस जो LTTE ग्रुप जो है दैट नेवर वांटेड कि वो अगर राजीव गांधी दोबारा पावर में आएंगे तो ऑफकोर्स वो दोबारा फेस
पीस कीपिंग फोर्स को सेंड करेंगे, एंड देन उनका जो डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं होगा, एंड दे हैव टू फाइट विद द पीस कीपिंग फोर्स. सो फाइनली व्हाट दे डन, दे assassinated him. Okay, here you can see the assassination. This was done by, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे. ऑफ कोर्स दोज हु वर इन्वॉल्व इन दिस assassination, जो भी इन्होंने प्लान आउट किया था, दे वर अरेस्टेड, दे वर अंडर द जेल. ओके, यहाँ पर ये जो गर्ल है, दिस गर्ल, ओके, दनु, हियर यू कैन सी दिस गर्ल. ओके, शी एक्चुअली व्हाट शी डन, बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गए थे राजीव गांधी, एंड व्हेन ही मार्च टूवर्ड्स द स्टेज, बेसिकली कहाँ पर, श्री पेरम्बलूर, तमिलनाडु में एक जगह है श्री पेरम्बलूर, वहाँ पर वो गए थे. और वो स्टेज के पास जब वो गए थे ताकि वो अपने स्पीच डिलीवर कर सके, दिस काफ़ी ऑन द वे अ लॉट ऑफ पीपल, वेल विशर जो थे, उन्होंने गार्लैंड के साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा वेलकम भी किया था. तो बच्चे भी थे वहाँ पर, स्कूल चिल्ड्रन भी थे. एंड दिस गर्ल, यू कैन सी दनु, शी वॉज स्टैंडिंग, यू कैन सी हियर, शी वॉज स्टैंडिंग हियर. ओके, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली she went close to Rajiv Gandhi and tried to touch his feet. Okay, उसने उनके पैर छुआ, उसने टच किया. Okay, then what she done, she clicked the button of RDX explosive, a suicide belt that was she was actually tied in her below her dress. Okay, उसने अपने ड्रेस के नीचे वो एक suicide belt डाला हुआ था, and then she touched that button and that exploded. Okay, so ये incident हुआ था at night 10 o'clock around, I guess it was 10:10. Okay, रात के 10:10 में ये इंसिडेंट हुआ था. राइट, नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सुसाइड इंसिडेंट. नाउ कमिंग बैक टू दी पीस, की वहाँ पर पीस एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ. नाउ सी, यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स, ओके, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं थ्रू विच एक्चुअली पीस यहाँ एस्टैब्लिश करने की कोशिश हुआ था. दैट वाज, यू ऑल रिमेंबर दैट 2001, दैट इज़ 9/11 अटैक हुआ था यूएसए में. ओके, सो उस अटैक के बाद USA declared war on terror. That it said that कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स है, नाउ इट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन देम. ओके, सो उसके लिए USA गवर्नमेंट जो था, दैट वाज विलिंग टू सपोर्ट ऑल दोज आई मीन गवर्नमेंट्स जहाँ पर वो टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट कुछ काइंड ऑफ अगर कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं टू डिस्ट्रॉय ऑल दोज टेररिस्ट ग्रुप. सो USA गवर्नमेंट सेड दैट इट विल सपोर्ट देम. ओके, सो हियर ऑफ कोर्स श्रीलंका में टेररिस्ट ग्रुप श्रीलंकन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा है, दैट वाज LTTE. ओके, सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, वॉर ऑन टेरर जो USA के चाहता, उससे LTTE को ये फील हो गया था कि नाउ इट विल नॉट स्टे स्ट्रांगली फॉर एवर. राइट, तो ये एक स्टेप था जिससे LTTE का जो पावर जो था वो थोड़ा मॉरली डाउन हुआ. ओके, एंड देन वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्री, नाउ सी स्कैंडिनेवियन कंट्री, यू कैन सी हियर नॉर्वे. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 5 कंट्रीज है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड एंड फिनलैंड. ओके, सो नॉर्वे, आइसलैंड जैसे कंट्रीज जो हैं, दे स्टार्टेड मीडिएटिंग दे स्टार्टेड मीडिएटिंग रोल. ओके, सो यहाँ पे 2002 में नॉर्वे ने एक तरीके से एक पीस प्रपोजल प्रेजेंट किया था, दैट दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, दैट विच इज़ देयर बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड LTTE. तो फाइनली यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन भी हुआ था, दैट वॉज नॉट दैट मच प्रैक्टिकली प्रूव्ड. ओके, बट येस, नॉर्वे टेकन द इनिशिएटिव. अच्छा, हियर कम्स द पॉइंट, व्हाई डिड द नॉर्वे टेकन दिस इनिशिएटिव. ऑफ कोर्स नॉर्वे एक बहुत ही पीस लविंग कंट्री है, तो अब इसलिए वो चाहता है कि वो पीस एक तरीके से मेंटेन हो वर्ल्ड में. ओके, सो यहाँ के कन्फ्लिक्ट को भी वो रोकना चाहता था. राइट, एंड 2004 में LTTE उससे पीस एस्टैब्लिश नहीं हुआ. ठीक है, इट वॉज एग्रीमेंट ऐसा था कि वो पेपर में एस्टैब्लिश हो गया, बट ऐसा प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं ग्राउंड लेवल पे. 2004 में LTTE के अंदर ही स्प्लिट हो गया था. ओके, एंड स्प्लिट होने से ऑफकोर्स ये जो ग्रुप जो था इसका पावर जो था और डाउन हुआ. एंड देन 2009 में फाइट में जो LTTE के लीडर जो था, दैट वॉज वेलुपले प्रभाकरन, ही वॉज किल्ड. सो फाइनली सिंस लीडर नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो LTTE का जो डोमिनेंस था, दैट स्टार्टेड डिग्रेडिंग. एंड यहाँ पर 2009 में ये LTTE का जो ग्रुप जो था, दैट केम टू एन एंड. एंड आर्म्ड स्ट्रगल जो था, दैट ऑल्सो केम टू एन एंड. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस श्रीलंकन कन्फ्लिक्ट. नाउ हम हियर विल डिस्कस अबाउट इन स्पाइट ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, श्रीलंका ने में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी था. व्हाट वाज दैट? दैट वाज
The first thing is that in spite of during this conflict, it registered a considerable economic growth. यहाँ पर कुछ economic growth जो था, that was considerable, it was growing, it was not that stagnated, वो stagnant था, it was growing. Okay, considerable उसका अच्छा growth था. And then human development, जो level of human development है उसमें भी काफ़ी improvement था. And then they control the rate of growth of population. Okay, Sri Lankan government. And then this was the first country in the region to liberalize the economy, right? And इस particular time period में, इसी civil war के time period में ही highest per capita gross domestic product GDP जो था इस country का, that was growing at very good rate during this particular time period. For many years the rate of GDP was very good. Okay, and the very important thing throughout this period, in spite of this ethnic clashes in Sri Lanka, it maintained a democratic political system, something very important. Okay, so this is all about Sri Lanka. I hope this one clear. Thank you for watching this video.